Good morning, students. How are you all? Welcome to computer science classes. Today we will start our second chapter, which is on memory and storage devices. So, what we will cover in this chapter? We will cover what are storage devices and what are memory. We will also discuss type of storage devices and we will check how many type of memories are there. So today we will study brief information about storage devices and memory. Now before we go through the particular topic that I'm going to discuss over here, you might be knowing in your previous classes, you might have studied in the previous classes that hardware devices were of three types. One is input device, second one is output device, and third one is storage device. Storage device is a device where you can save your information or store your file. Now those type of storage can be of two types, primary storage and secondary storage. प्राइमरी स्टोरेज वो होते हैं जहां पर आपका फाइल थोड़ी देर के लिए रहता है, फाइल सेव रहता है. वंस यू शट डाउन योर कंप्यूटर, वो सारा सेव्ड फाइल उड़ जाता है, वो मेमोरी लोकेशन में रहता है, प्राइमरी मेमोरी लोकेशन. सेकेंडरी फाइल्स secondary storage device are those type of storage device where you can save your file and you can work on the pending task again for future. Like आप MS Paint पे कोई काम अगर कर रहे हो या डॉक्यूमेंट को टाइप किया है आपने डे वन में और उस काम को नेक्स्ट डे आप करना चाहते हो, then you save that file on your computer system. तो वो फाइल आपके हार्ड डिस्क में आप सेव करते हैं. Now before we proceed further, हम कुछ बातें अभी डिस्कस कर लेते हैं. जैसे I have talked about memory, I have talked about storage. Now memories किसको बोलते हैं? Let me read it for you once. Every storage device has a fixed capacity to store data. This fixed capacity is called its memory. Like अगर हार्ड डिस्क में अगर हम कुछ सेव करना चाहें, नॉर्मली एक हार्ड डिस्क आजकल 1 टेराबाइट की आती है. सो टेराबाइट और टीबी इज द यूनिट और मेमोरी कैपेसिटी ऑफ ए हार्ड डिस्क. सो वो उतनी जगह होल्ड करके रख सकता है एक स्टोरेज के लिए. अगर स्टोरेज भर जाएगा तो हार्ड डिस्क आपकी फुल हो जाएगी. वैसे ही अगर आप पेन ड्राइव को लीजिएगा तो एक पेन ड्राइव नॉर्मली 8 GB, 16 GB, 32, 64, 128 to 56 GB की आजकल आ रही हैं. तो अगर 16 GB की नॉर्मल पेन ड्राइव में आप कोई मूवी, गेम, इस तरह जिसमें ह्यूज अमाउंट ऑफ स्पेस की ज़रूरत पड़ती है टू स्टोर योर डेटा, अगर उसको आप सेव करते हैं तो नॉर्मली एक मूवी, HD मूवी आजकल 1.5 2 GB की आती है. सो यू कैन सेव एट मोस्ट 8 movie of 2 GB. 2 into 16 on a rough estimate मैंने 16 GB हार्ड डिस्क में बोला कि आप 2 GB की कोई मूवी अगर HD मूवी है तो 8 मूवीज आप सेव कर सकते हैं. सो दैट इज द स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ योर पेन ड्राइव. नाउ बेसिक इंफॉर्मेशन ऑफ मेमोरी हम कैसे जानेंगे? जैसे हम कुछ भी कंप्यूटर में सेव करें, वी कॉल
the basic element of storage as data. अगर आप कुछ टाइप भी कर रहे हैं, any character or alphabet, those character or alphabet can be termed in computer terminology as data, which is facts, figure, words, etc. Like if you are typing or writing something about you, which is a fact, like आप अपने बारे में अगर बता रहे हो तो वो सच्चाई है, उस चीज को अगर आप लिख रहे हो दैट इज अ फैक्ट. फिगर, कोई इंफॉर्मेशन अगर आप दे रहे हो, कोई डेटा एनालिस करके कुछ डेटा प्रोवाइड करो, दोस आर टर्म्ड एज फिगर. दिस इज नॉट फिजिकल फिगर, दिस इज लॉजिकल इंफॉर्मेशन. किसी चीज के बारे में अगर आप बता रहे हो, वो वर्ड्स में भी लिख सकते हैं, नंबर्स में भी लिख सकते हैं, किसी सिंबल से भी डिनोट कर सकते हैं. सो एवरी single element that you are typing or writing in computer is known as data. Now what is instruction? Command that tells the computer how to work on that data. Like अगर आपने Word को ओपन किया है, MS Word को ओपन किया, if you are typing something, that means you are giving instruction or command that allow me to type something on MS Word. So you are writing an application in MS Word and computer allows you to write those instructions on MS Word. Now what is information? Information is result or output given by the computer. आपने जो कुछ भी लिखा है, अगर कंप्यूटर उसको आपको डिस्प्ले कर रहा है, दैट इज द आउटपुट of whatever you are feeding in the computer with the help of keyboard or mouse. हम जो कुछ भी टाइप कर रहे हैं, अगर कंप्यूटर उसको ठीक से डिस्प्ले कर रहा है, दैट इज द रिजल्ट गिवन बाय कंप्यूटर. वो कैलकुलेशन भी हो सकता है, कोई इंफॉर्मेशन जो आप फीड कर रहे हैं वो भी हो सकता है. सो कलेक्शन ऑफ डेटा इज नोन एज इंफॉर्मेशन. और जो हम कमांड कर रहे हैं कि आप इस चीज को वहां दिखाइए, दैट इज इंस्ट्रक्शन. क्लियर? सो हाउ दैट डेटा इज स्टोर्ड इन कंप्यूटर. आपको अगर मालूम होगा, कंप्यूटर हमारी लैंग्वेज को नहीं समझता. इफ यू से समथिंग इन इंग्लिश, हिंदी, पंजाबी और एनी अदर रीजनल लैंग्वेज, कंप्यूटर वोंट अंडरस्टैंड एनीथिंग ऑफ इट. सो वो क्या करता है, हम क्या करते हैं, हम एक डिवाइस हम यूज करते हैं, असेंबलर, जो लॉजिकल डिवाइस होती है, अलग अलग तरह के सॉफ्टवेयर में अवेलेबल होता है. वो क्या करते हैं, वो हमारे लैंग्वेज को कन्वर्ट करके मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करते हैं. दोज मशीन लैंग्वेज कैन बी अंडरस्टूड बाय कंप्यूटर. आप यहाँ देखिए, डेटा इन मेमोरी इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ डिजिट, जीरोस एंड वन. कंप्यूटर हमारी लैंग्वेज को नहीं समझता है. जब सॉफ्टवेयर के माध्यम से हमारी लैंग्वेज को ट्रांसलेट किया जाता है मशीन लैंग्वेज में, दैट इज इन टर्म्स ऑफ जीरोस एंड वंस, तो कंप्यूटर उस लैंग्वेज को समझता है. दीज डिजिट आर कॉल्ड एज बाइनरी डिजिट और बिट्स. बिट स्टैंड्स फॉर बाइनरी, बाइनरी का BI और डिजिट का TS, इसका कॉम्बिनेशन मिलता है, बना है बिट्स. सो बिट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मेमोरी दैट इज डिनोटेड बाय लेटर B. कंप्यूटर की जो स्मॉलेस्ट यूनिट है, सबसे छोटी यूनिट है मेमोरी की, उसको बिट्स बोला जाता है. ऑलराइट, नाउ the memory of storage device is measured in specific unit. स्टोरेज डिवाइस के अंदर कितना डेटा स्टोर हो रहा है या सेव हो रहा है, उसके मेजरमेंट के लिए एक स्पेसिफिक यूनिट हम लेते हैं, जिसको हम बाइट बोलते हैं, BYTE. दिस इज डिनोटेड बाय लेटर, कैपिटल लेटर B. बिट्स को हम स्मॉल लेटर में डिनोट करते हैं, बाइट को हम कैपिटल B में रिप्रेजेंट करते हैं या डिनोट करते हैं. एंड
बाइट आर कंप्राइज्ड ऑफ बिट्स। बाइट्स जो होते हैं वो बिट्स से बनते हैं। कैसे बनते हैं? each byte consists of 8 bits. That means one byte or one capital B equals to 8 small b or 8 bits. Now, did you understood? Smallest unit of memory is known as bits, जो 0 और 1 में काउंट किया जाता है। लेकिन जब हम मेमोरी स्टोरेज की काउंटिंग करते हैं तो हमें स्पेसिफिक एक यूनिट लेना पड़ता है, उसको हम बाइट बोलते हैं। और 1 बाइट that is capital B equals to 8 bits, that is small b. Let's move on to the next topic. Now this is the table shown over here which represent different type of measurements of memory. यहाँ पर किस तरह से हम मेमोरी को डिनोट करेंगे उसकी यूनिट्स को दिखाया गया है। So first unit is byte represented by capital B. As I said, 1 byte equals to 8 bits. It is equivalent to 8 bits. Now उसके बाइट के बाद जो नेक्स्ट यूनिट आती है वो आती है किलोबाइट, which is represented by capital K, capital B. Now 1 KB equals to 1024 byte. ये फिजिकल मेजरमेंट के तरह नहीं है। जैसे आप स्केल इंफॉर्मेशन आपको मालूम होगा कि 10 मिलीमीटर इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर और 1 मिलीमीटर इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 10 millimeter. 1 meter equals to 100 centimeter and 1 kilometer equals to 1000 meter. So 1 kilometer equals to 1000 meter होगा, आप जानते हैं ना। But in terms of computer terminology, 1 kb represent or equals to 1024. Then comes megabyte, which is definitely bigger than kilobyte. Again 1024 kb equals to 1 MB. Then comes gigabyte. After megabyte it's gigabyte. It's the same measurement. 1024 MB equals to 1 GB. Final one is terabyte. 1 terabyte equals to 1024 GB. This is the normal logical unit for memory. So today you will study this lecture video and please make a chart of this table so that in future if question comes how to find different memory units, you would be able to reply properly. Alright, so I'm going to end this session today and tomorrow we will discuss on the next topic, which is type of memory. How many types of memory, computer memory are there in computer? We will discuss it tomorrow, and based on these memory types we will go ahead and do the checkpoints that is shown over here, and I will prepare some points. Please make a note in your fair copy. Alright students, see you tomorrow then. Bye bye.